ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی. خطرناک وائرس 250 سے زائد قیمتی زندگیاں نکل گیا. 5,000 سے زائد مریضوں کے ساتھ پنجاب کا پہلا نمبر. سندھ میں 4,232 افراد میں وائرس کی تشخیص. 9,212 اسپتالوں میں زیر علاج. 2,759 صحتیاب. خیبر پختونخوا میں کورونا کے خلاف پہلا مسیحا زندگی کی بازی ہار گیا. ENT پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھے. تمام حفاظتی اقدامات کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مرحوم ڈاکٹر کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان. ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم WHO کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان پہ عمل کریں. ہم سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن کی جو پالیسی حکومت کی ہے اس کو مزید سخت کرنے. لاک ڈاؤن سخت نہ کیا تو پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے. اسلام آباد کے مسیحاؤں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. ڈاکٹر اسفندیار نے کہا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم سیاسی لوگ نہیں، پروفیشنلز ہیں. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت. ڈاکٹر افتخار برنی کہتے ہیں گورنمنٹ جس انداز کا اسمارٹ لاک ڈاؤن یہاں لانا چاہ رہی ہے، لوگ اس کی پابندی شاید نہیں کر سکیں گے. اس کی پابندی کرنا عملی طور پر ممکن نہیں ہے. ہماری یہ خواہش ہے ڈاکٹرز کی، ان کی نمائندہ تنظیموں کی، کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن سے گزارا نہیں ہوگا. وزیراعظم کا بین الملک مقیم پاکستانی مسیحاؤں کے لیے بڑا اعلان. شعبہ صحت سے وابستہ افراد کے لیے یاران وطن ایپ لانچ. عمران خان کہتے ہیں پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز دنیا بھر میں وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر ہیں. اب وہ پاکستان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. خواہش مند افراد ایپ پر خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. پہلی اور آخری ترجیح کورونا کا پھیلاؤ روکنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پرعزم. کہا اپوزیشن نے کورونا جیسے اہم قومی مسئلے پر عوام کو مایوس کیا. 22 کروڑ عوام اپوزیشن جماعتوں کے دوغلے چہرے پہچان چکے. سرکاری خرچ پر افطار پارٹیوں پر بھی پابندی عائد. سندھ میں 2599 ٹیسٹ کیے. 287 میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 3 افراد جان سے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ویڈیو بیان. کہا شہری گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. پہلے روزے کو ہی عوام نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کی پریس بریفنگ. کہا صورتحال حوصلہ افزا نہیں، احتیاط نہ کی تو کورونا تیزی سے پھیلے گا. ہمارا ہیلتھ سسٹم صورتحال کی تاب نہیں لا سکے گا. وزیراعظم نے کھل کر لاک ڈاؤن کی مخالفت کی. قمر زمان قائرہ کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ گفتگو. جاوید عباسی بولے حکومت کچھ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہوتا. علی محمد خان نے کہا ہم نے سیاست نہیں کرنی، ملک بھی چلانا ہے. ملک بھر میں عوام گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں. پہلے روزے پر سڑکوں اور بازاروں میں بلا کا رش. خریداری کے دوران عوام نے تمام احتیاطی تدابیر پیروں تلے روند ڈالی. طبی ماہرین کی اپیل اور سیکورٹی فورسز کے ناکے بھی شہریوں کو باہر آنے سے نہ روک سکے. چین سے میڈیکل ایمرجنسی ریلیف کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی. ٹیسٹنگ کٹ، سرجیکل ماسک، N95 ماسک، وینٹیلیٹر اور حفاظتی سوٹ شامل. ISPR کے مطابق سامان کے ساتھ چینی طبی ماہرین بھی اسلام آباد پہنچے. میڈیکل ٹیم 2 ماہ ملک میں قیام کرے گی. ماہ رمضان میں شیطان قید لیکن منافع خور آزاد. پھل، سبزیاں، دالیں اور دیگر اشیاء مہنگی ہو گئیں. لاک ڈاؤن سے پریشان غریب کی کمر ٹوٹ گئی. بازاروں میں چیک اینڈ بیلنس بھی نہ ہونے کے برابر. شہریوں کا حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ. پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے PTI کی بنیاد رکھی. وزیر اعظم عمران خان کا پارٹی کے 24ویں یوم تاسیس پر ٹویٹ. لکھا اسلامی فلاحی ریاست کے لیے قانون کی حکمرانی اہم ہے، جہاں ہر کوئی قانون کے آگے برابر ہو اور طاقتور قانون کے تابع ہو.
शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल, जरदारी के मामलात सेट हो गए। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज और मरियम की आपस में नहीं बनती। मरियम नवाज शाहिद खाकान को पार्टी सदर बनाना चाहती हैं। 6000 अरब की करप्शन में सब रगड़े जाएंगे। IPPs और दीगर रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाने का क्रेडिट इमरान खान को दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आइम्मा मसाजिद को खत, SOPs पर अमल करने पर खुशी का इजहार। लिखा, नमाज तरावी में 50 साल से जायद उम्र के अफराद भी शामिल थे। कमेटी और दीगर नमाजी बुजुर्ग अफराद घर में नमाज पढ़ने पर कायल करें ताकि वो महफूज रह सके। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। माही गुफरान की अजमत, हर घड़ी हर लम्हा बाबरकत। आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन, बारान रहमत की रानाइयाँ, बारगाह इलाही के अहकामात और दीन दुनिया से मुताल्लिक अहम मालूमात पर मबनी ट्रांसमिशन। रीमा की मेज़बानी ने सबके दिल मोह लिए। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, मुगलिया दौर में तामीर हुई। बैक वक्त 1500 से ज्यादा अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में लगा पत्थर गर्मी में सर्द और सर्दियों में गर्म हो जाता है। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बिहाड़ी की तालीम याफ्ता बाहिम्मत खातून को सरकार ने नौकरी दे दी। DPS बिहाड़ी में खातून को ऑफिस जॉब के लिए तकर्रुरनामा जारी कर दिया। उस्मान गुजदार बोले, पारस जैसी होनहार बेटियां कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। तालीम याफ्ता बेटी के हाथ में झाड़ू देखकर दिल खून के आंसू रोया। और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको कि पाकिस्तान में कोरोना के बाद है मजीद 3 अफराद जान से चले गए। मुल्क में अमवात 256 तक पहुंच गई। मौलिक वायरस से मुतासरीन की तादाद 12,227 हो गई है। 5,046 मरीजों के साथ पंजाब का पहला नंबर। सिंध में 4,232 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तेज होने लगा, मजीद 287 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। मुतासरीन की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुजर रहा है। फैलाव को रोकने के लिए एहतियात अशद जरूरी है। पहले रोजे को अवाम ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अफ्तारी से कुछ कबल हमारे बाजारों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये हदायत के मुनाफी है जो अब तक जारी की गई हैं रमज़ान के हवाले से। इस वक्त अगर हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया, ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी, लोगों को क्रिटिकली बीमार करेगी। पंजाब में तस्दीक केसेस 5,000 से ऊपर हो गए। 4,232 के साथ सिंध का दूसरा नंबर है। खैबर पख्तूनख्वा में 1700 से ज़ायद में कोरोना की तशखीस हुई। डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक तमाम सूबाई वज़राए सेहत से मुशावरत हुई है। नेशनल एक्सपर्ट कमेटी तश्कील दे दी गई है। तमाम वज़राए सेहत जो हैं सूबाई और मेरी उनके साथ मुशावरत हुई है। एक कौमी एक्सपर्ट कमेटी जो है, नेशनल एक्सपर्ट कमेटी TTQ के लिए और दीगर टेक्निकल मामलात को तय करने के लिए वफाक और सूबों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के साथ वो तश्कील दे दी गई है। चोबरों में मोहलिक वारिस से 3 हलाकतें। मुल्क भर में अमवात की तादाद 256 हो गई। 9,212 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 2,759 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया। डॉक्टर मोहम्मद जावेद पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने और अहले खाना को खुसूसी पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस ने खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर की जान ले ली। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंतजामिया के मुताबिक ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद में चंद हफ्ते कबल कोरोना की तशखीस हुई थी। हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया।
डॉक्टर जावेद चारसदा में रहाइश पजीर थे। तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जावेद की नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें चारसदा में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डॉक्टर जावेद की सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी और मरहूम के अहले खाना के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माओन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कामरान बंगिश को घर में करंतना किया गया है, जबकि उनके अहले खाना के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक और एजाज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन के लिए यारानी वतन के नाम से प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। यारानी वतन के जरिए बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स भी पाकिस्तान के लिए रज़ाकाराना तौर पर खिदमात से अंजाम दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जिहाद में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन अगली मुहाज़ों पर सरगर्म हैं और वो इस बीमारी के इंसदाद के लिए हमारा हाथ भी बटाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की मसाजिद में हाजिरी के बाद इमाम साहिबान को खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि खुशी हुई कि मस्जिद की इंतजामिया ने तदाबीर के 20 नुकात पर अमल दरामद किया। अलबत्ता एक मामले की तरफ निशानदही इंतहाई ज़रूरी है कि चंद अफराद जो 50 साल से उम्र में ज़ायद थे वो भी तरावी की जमात में शामिल थे। उलमा और हुकूमत के इजमा के शक नंबर 6 के मुताबिक 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से मस्जिद में जमात अदा ना करने की दरख्वास्त की गई है। मस्जिद कमेटी और बाकी नमाजियों को चाहिए कि इन बुजुर्गों को इस बात पर कायल करें ताकि हम सब मिलकर इस वबा को फैलने से रोक सकें। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने स्मार्ट लॉकडाउन के बजाय 2 से 3 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर इफ्तिखार बर्दी ने कहा कि हुकूमत बज़ाहिर ताजिरों के दबाव के बाइस सख्त लॉकडाउन नहीं कर रही। रेहान शेख की रिपोर्ट। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदा डॉक्टर इफ्तिखार बरनी का कहना था, पाकिस्तान में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के बायस अस्पतालों में गुंजाइश कम और वेंटिलेटर्स नाकाफी नजर आ रहे हैं। हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की बजाय 2 से 3 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन करे। गवर्नमेंट जिस अंदाज का स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ लाना चाह रही है, लोग उसकी पाबंदी शायद नहीं कर सकेंगे। उसकी पाबंदी करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश है डॉक्टर्स की, उनकी नुमाइंदा तंजीमों की, कि सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन से गुजारा नहीं होगा। डॉक्टर इफ्तिखार बरनी का कहना था, पिछले 1 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद डबल हो गई। लगता है हुकूमत ताजरों के प्रेशर के बायस सख्त लॉकडाउन करने से गुरेजा है। तिजारती जो तबका है उसका ताउन भी चाहिए होगा। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इस तबके की जानिब से जो मुतालबात हो रहे हैं और जो हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उस दबाव के ज़ेरे असर हुकूमत ये लॉकडाउन में नरमी करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर डॉक्टर्स ने कहा, मसाजिद के इज्तिमा कोरोना के फैलाव का जरिया बन सकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उस वक्त तक एहतियात नागुज़ीर है। रेहान। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के सामान की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान में पीसीआर टेस्टिंग किट्स, सर्जिकल और N95 मास्क और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। ISPR के मुताबिक चीन की तिब्बी टीम ये सामान लेकर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंची थी। चीनी मेडिकल टीम की क़यादत मेजर हैं। मेडिकल टीम माहिर डॉक्टर्स और नर्सिंग माहिरीन पर मुश्तमिल है। चीनी मेडिकल टीम पाकिस्तान में 2 माह क़याम करेगी। मुल्क कौम के वसाइल पर काबिज अशराफिया का कब्जा खत्म करके वसाइल को गरीबों में तकसीम करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का